وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی، پر اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھیں، اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجلیاں پوشیدہ تھی، وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی، وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی تھی، اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی، پر اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھیں، پر اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیزہ کی ہنگاموں بری داستان عجیب دید بان۔ یہ 5 قربانیاں دینے سے پہلے اور بعد میں مجھے آگ کی پرستش کرنے کا حکم دیا گیا، اور یوں بھی قربانیاں دینے کے بعد 7ویں قربانی کے لیے مجھے ایک ایسی کمواری کی ضرورت تھی جس کی کوئی نشانی قہر کے دیوتا مجھے خود بتا دیں کہ میں انہی کا پجاری ہوں۔ تو قہر کے دیوتا نے برسوں پہلے مجھے اس کنواری کی نشانی بتا دی اور نام بھی، اور یہ بھی کہ وہ کس سمت میں ملے گی، اور مجھے بتایا گیا کہ اس بار جس کنواری کو 7ویں قربانی کے لیے منتخب کیا گیا ہے اس کے دائیں شانے پر سانپ کے پھن کا نشان ہے۔ سو مجھے ہرباش دیوتا نے بتایا کہ 7 دن تک 7 قربانیاں دینے اور آگ کی پرستش کرتے رہنے کے بعد نئی جوانی اور نئی زندگی مل جائے گی، اور میرا سوکھا سڑا بدن اپنی پہلی اور 7ویں قربانیوں یعنی 2 نشان زدہ کماریوں کا خون پی کر بالکل ہرا بھرا ہو جائے گا۔ اس کے بعد حسیف دیوانوں کی طرح کہہ کے لگانے لگا۔ حسیف کی یہ عجیب اور ہولناک داستان سن کر میرا دل دہل گیا۔ اب خطرہ پوری طرح مجھ پر واضح ہو گیا۔ مہا پجاری احرس اور نثار کے ساتھ میری زندگی بھی شدید خطرے میں تھی، اور یہ ایک الگ اور بات کا مسئلہ تھا کہ میرا زہریلا خون پی کر خود وہ شیطان بھی زندہ نہ بڑھتا، مگر اس سے پہلے وہ میرے جسم کا تو سارا خون نچوڑ کر مجھے ہلاک کر چکا ہوتا، اور وہ جن دیوتاؤں کا نام لے رہا تھا میں نے اس سے پہلے کبھی یہ نام نہیں سنے تھے۔ اب مجھے اس پر یقین آ چکا تھا کہ حسیب پر اسرار شیطانی قوتوں کا مالک ہے۔ اس نے اپنی انہی پر اسرار قوتوں کے ذریعے میرا سراغ لگایا تھا، اور پھر مجھے زیر دام لانے کے لیے مہا پجاری اور احرس کو قید کر لیا۔ تب ہی وہ چند روز سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک نہ ایک روز ادھر ضرور آؤں گی، اور اس کا کہا بالکل سچ ہوا، اور مجھے اپنی موت کا کوئی غم نہیں تھا۔ اگر رنج تھا تو صرف یہ کہ میں سیان سے انتقام نہ لے سکوں گی۔ اقوا اور حسیف کے درمیان بھی انتقام ہی کا مضبوط رشتہ تھا، جس کی تفصیل مجھے معلوم ہو چکی۔ اس طرح ایک طرف تو حسیف کی قربانیاں پیش کر کے صدیوں کی زندگی ملنے والی تھی، اور دوسری جانب سے اس کا انتقام کا گویا پہلا حصہ بھی مکمل ہونے والا تھا، کیونکہ وہ اقوا کی آئندہ نسلوں تک انتقام کے اس سلسلے کو پھیلانا چاہتا تھا۔ اس نے میرے تینوں ساتھیوں کو عضو معطل بنا دیا تھا، ورنہ شاید مفر کی کوئی صورت نکل آتی۔ اگر میں ہی اس کے ہتھے نہ چڑھتی تو یقیناً اپنے ساتھیوں کو اس کی قید سے رہائی دلانے کی کوشش کرتی۔ کچھ دیر تک سکوت طاری رہنے کے بعد اچانک ساگون نے حسیف کو مخاطب کیا، تو کیا شرجیہ کی بیٹی اور محبوبہ کو تیرے غلام اسی لیے اٹھا کر لائے تھے؟ ہاں، حسیف نے جواب دیا۔ جب مجھے اپنی ناتوانی کا احساس ہوا اور میرا جسم میری کھوپڑی سے نمک حرامی کرنے لگا تو میں نے کنج کے بیٹے کے بتائے ہوئے فعل کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ تب میرے حکم پر میرے غلام زمین پر پھیل گئے، اور یہ کام آسان نہ تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ میرے غلام بہت جلد نشان زدہ دونوں کنواریوں کو تلاش کر لیں گے اور ناکام نہیں لوٹیں گے، اور میں بے چینی سے ان کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ تب ایک دن میرے ایک غلام واپس آیا اور اس نے خبر دی کہ ایک نشان زدہ کنواری تلاش کر لی گئی، مگر دوسری سانپ کے پھن والی نہیں ملی، اور مجھے بتایا گیا کہ جو کنواری مل چکی ہے وہ گوروس میں رہتی ہے اور وہ تیرے بیٹے ساگون کی محبوبہ ہے۔ تو میرا انتقام جاگ اٹھا، اور میں نے ایک تدبیر سوچ لی کہ میرے غلام اور اس کنواری کو اٹھا کر گورو سے یہاں لے آئے، اور میرے ایک غلام خود میرے ہی حکم پر وہیں رک گیا تاکہ تجھے اے ساگون میرے بارے میں خبر دے سکے، اور اے اقوا مجھے یقین تھا کہ میرے غلام کے سینے میں پر میرا مخصوص نشان دیکھ کر تو مجھے پہچان لے گا، اور پھر تو اپنے بیٹے کے پیچھے پیچھے دوڑا ہوا یہاں ضرور آئے گا اور گھیر لیا جائے گا۔ دیکھ لے اے میرے دشمن اقوا کے تجھے اور تیرے بیٹے ساگون کو گھیر لیا گیا۔ نہیں، میں اقوا کی اولاد نہیں، ساگون پوری قوت سے چیخ اٹھا۔ تیری دشمنی اقوا سے ہے تو انتقام بھی اسی سے لے۔ شرجیہ کی بے گناہ بیٹی پر ظلم مت ڈھا، ورنہ میں تیرے لیے کول کا رکنے والا طوفان بن جاؤں گا۔
सागून की आवाज में फटते हुए आतिश फशां की गरज थी और आंखों से खून सा टपक रहा था। कहर का देवता तो इस वक्त हसीफ के सर पर नाच रहा है। हसीफ सागून के सामने पहुंचकर कहर गया, अब तुम दोनों बाप बेटे सब कुछ अपनी आंखों से देखोगे मगर हरकत ना कर सकोगे। तुम्हारे में मौजूद लोथड़ा पत्थर की तरह सख्त हो जाएगा ताकि तुम बोल भी ना सको और मैं तुम्हारी बेबसी को देखकर लुत्फ भी उठाऊं। हसीफ फिर जोर जोर से हंसने लगा। रुक जा शैतान, बात आ जा अपने इरादे से। सागून की आवाज फट गई और फिर मैंने देखा कि चर्मी बंधन तोड़ने की कोशिश कर रहा है मगर कामयाब ना हो सका। और मेरा अंदाजा था कि अगर वह लम्हों के लिए भी आजाद हो जाता तो हसीफ के जिस्म की धज्जियां बखेर देता। वो चीखता चिल्लाता हुआ मगर हसीफ पर कोई असर नहीं हुआ। अकवा सार झुकाए खामोश खड़ा था, कतई पुरसकून। उसकी तमानियत मेरे लिए ताज्जुब खेज थी। सागून की तरफ से पलट कर खिलाफी तवक्का हसीफ मेरे सामने आकर रुक गया। उसकी तेज नजरें मुझे अपने जिस्म में नश्तर की तरह उतरती हुई महसूस हुई और मालूम नहीं मेरे चेहरे पर इस वक्त कैसे तासरात थे। शायद रंज के आसार रहे होंगे। वो बूढ़ा शैतान इसीलिए अपने हाथ से मेरी ठोड़ी उठाते हुए बोला, अरे तू क्यों मलोल है। फिर उसके होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट नाचने लगी। सुन ऐ सांप के फन वाली, मैं तुझे दुनिया से यूं मलोल अफसुर्दा और महरूम नहीं जाने दूंगा। अभी तेरी कुर्बानी में कई दिन बाकी हैं और ये दिन रायगा नहीं जाएंगे। उदास ना हो कि तू इस दुनिया से कंवारी रुखसत नहीं होगी। और मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई और मैं भी सागून की तरह किसी बफरी हुई शेरनी की तरह धारने लगी। मैं उस शैतान बूढ़े को बुरा भला कह रही थी और वह बेहयाई से हंस रहा था। उन्हीं लम्हात में रोशनी की एक किरण सी मुझे नजर आई कि मैं जिंदा बच सकती थी। अभी मेरे पास वक्त था और अगर मैं जिंदा बच जाती तो फिर आहरस, नसार और महापुजारी को भी मौत के मुंह में जाने से शायद बचा सकती थी। कुर्ब के लम्हों में मुझे हसीफ के लिए मौत के लम्हों में बदल सकती थी मगर ये खुशगवानी सिर्फ चंद ही लम्हे बरकरार रह सकी और उम्मीद की किरण बुझ गई। हसीफ मुझसे कह रहा था, सुन, मुझे खबर है कि तू एक खूबसूरत जंगली बिल्ली है। तू अपने तेज नाखनों से मेरे कई गुलामों के जिस्म उधेड़ चुकी है, उन्हें आखिरत के सफर पर रवाना कर चुकी है। आज रात जब मैं अपनी तन्हाइयों को तेरे कुर्ब से आबाद करूंगा तो तेरी हालत अकवा और सागून जैसी होगी। अभी तो खुद इन दोनों को इस हालत में देखेगी और ये दोनों मुजस्मों की तरह बेहिस्सो हरकत हो जाएंगे और ये सब कुछ देखेंगे, सुनेंगे, महसूस करेंगे मगर ना कुछ बोल सकेंगे और ना अपनी जगह से खफीफ सी हरकत भी कर सकेंगे। ऐ सांप के फन वाली हसीन आतून, कुर्ब के लम्हों में तेरा हाल भी ऐसा ही होगा। क्यों, यही ठीक रहेगा ना। और फिर वो पलटा और लड़कियों से मुखातब हुआ, ऐ हसीफ के दिल की धड़कनों, अकवा और सागीन पर हसीफ का अजाब मुसल्लत कर दो ताकि सांप के फन वाली को मेरी सच्चाई का यकीन हो जाए। और फिर मेरी आंखों ने अकवा पर हसीफ का अजाब मुसल्लत होते देखा और ये सोचकर कांप उठी कि आज रात के किसी हिस्से में मेरे साथ भी यही होने वाला था। अकवा से निमटकर अब दोनों लड़कियां सागून की तरफ बढ़ रही थीं और उनमें से एक के हाथ में तेज तार खंजर था जो अकवा के लहू से सुर्ख हो रहा था। दूसरी लड़की ने पत्थर का बना हुआ खुला मुंह वाला बेढंगा सा बर्तन उठा रखा था और दोनों लड़कियां किसी मामूल की तरह चलती हुई सागून के पास पहुंच गईं। उनके चेहरे सपाट से थे, हालांकि उन्होंने अभी चंद ही लम्हे पहले एक जालिमाना फेल अंजाम दिया था। हाँ, मुझे उनकी आंखों में एक ख्वाबनाक तासर जरूर नजर आया जिसकी तय में हल्की सी सरासीमगी थी जो उनकी दिलों में मौजूद वहां हसीफ की मौजूदगी को खौफ बख्श हो सकता था। ऐ हसीफ, तू मुझसे मेरे जिस्म से बोटियां उतार ले मगर तुझे देवताओं का वास्ता कि तू अपने इरादे से बाज आ जा, मेरी महबूबा की जान ना ले। सागून लिहाजत अमीज अंदाज में चीखा मगर हसीफ सुनी अनसुनी कर गया। वो तो एक नोखेज लड़की को आगोश में समेटे बैठा था। सागून के बाजू से जब खंजर एक झटके से बाहर खींचा गया तो गहरे जख्म से खून का आबशार बह निकला। तब दूसरी लड़की ने बर्तन से सफूफ की मुट्ठी भरी और फिर वो सफूफ जख्म में भर दिया। सागून बेइख्तियार सिसक उठा था और इतनी अजियत शायद उसे जख्म खाकर भी नहीं हुई थी। उसी वक्त लड़की ने सागून के दूसरे बाजू में भी एक गहरा शिगाफ डाल दिया और उस जख्म में भी सफूफ भर दिया गया और हैरत अंगेज तौर पर जख्मों से खून का बहाव एकदम रुक गया। और मेरे लिए इस तरह बहते हुए खून का रुक जाना कोई गैर मामूली वाकया नहीं था। महापुजार ने भी एक मर्तबा मेरे हाथों से जख्मी हो जाने वाले के जख्म पर कोई सफूफ छिड़कर बहता हुआ खून रोक दिया था और ये वाकया मेरे बचपन का था और आशिर की बस्ती के बाहर पेश आया था। चंद ही लम्हे बाद सागून भी अकवा की तरह बेहिस्सो हरकत खड़ा रह गया और मैंने उसकी आंखों में आंसू तैरते देखे। वो बेबसी की इंतहा थी।
हसीफ ने लड़की को बेदर्दी से एक तरफ धकेल दिया और चट्टान से नीचे उतर आया। क्यों अकवा, बता, क्या तूने हसीफ के ऐसे अनोखे इंतकाम के बारे में तसव्वुर भी किया था? और हसीफ हंस पड़ा और फिर वो सागून के पास आ गया। अकवा के बदबख्त बेटे, तुझे अपने बाप की बोई हुई ज़ल्म की फसल काटना पड़ रही है, वरना तू ऐसा नौजवान है कि मैं अपने दिल में तेरे लिए रहम पाता हूँ। और देवताओं की कसम, हसीफ मजबूर है। मैं अकवा की नस्लों से भी इंतकाम लेने की कसम खा चुका हूँ और ये सिलसिला उसके दूसरे बेटे की नस्ल के साथ जारी रहेगा। और फिर हसीफ वहां से हटकर सामने की दीवार के पास चला गया और वहां मैंने उसे एक छोटे से सुराख के पास घुटनों के बल बैठे देखा और वो सुराख में मुंह डालकर चिल्लाया, लड़की को ले आओ और गद्दार सामर को भी। सामर का नाम सुनकर मैं चौंक उठी और मेरे दिल को एक धचका सा लगा। लफ्ज़ गद्दार ने मुझ पर सारी हकीकत ज़ाहिर कर दी। वो गरीब बिला सबब सिर्फ मेरी मोहब्बत के फ्रेब में मुब्तला होकर शायद मारा जाने वाला था और गद्दारों की सजा इन बस्तियों में इबरतनाक मौत ही थी। आहरस तो खैर तकरीबन नेम बेहोश सा था, उसकी आंखें भी बंद थीं, मगर महापुजारी और नज़ार दोनों होश में होने के बावजूद बिल्कुल लातल्लुक़ से थे और इस वक्त भी कुछ नहीं बोले थे जब हसीफ मुझसे बेहयाई की बातें कर रहा था। गालबन किसी नशे के ज़ैर असर वो यूं हर शय से बेखबर से थे और ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक तरफ दीवार में शगाफ नमूदार हुआ और एक हसीन हसीफ के गुलाम अंदर दाखिल हुए। सामर भी उनके साथ था। वो बरसों का बीमार नजर आया, किसी वहशतज़दा और सरासीमा हरण की तरह परेशान जो भेड़ियों के गौल में फंस गया हो। उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो रही थीं। उसे भी शायद कोई नशा आवर मशरूब पिलाया गया। हसीफ को भी शायद अपनी पुर इसरार कुव्वतों के जरिए सामर की गद्दारी का इल्म हो गया था। दो गुलामों ने एक तख्ता उठा रखा था जिस पर किसी लड़की का नीम बरहना बेहोश जिस्म पड़ा था। वो सब उस बड़ी चट्टान के सामने जाकर रुक गए जो सागून की निगाहों के ऐन सामने थी। लड़की को चट्टान पर उलट दिया गया और सारे गुलाम हसीफ के सामने सजदा रेज हो गए, उनमें सामर भी शामिल था। वापस आ जाओ और मेरी पुकार का इंतजार करो, हसीफ ने पुरजलाल लहजे में हुक्म दिया और गुलाम वहां से उठकर निकल गए। सामर भी उठ खड़ा हुआ। उसका बदन राशि का शिकार था और सर सीने पर झुका हुआ था। हसीफ के हुक्म पर उसकी करीजों ने बेहोश लड़की को चित लटा दिया और मेरे लिए यह समझना कुछ दुश्वार नहीं था कि वह बेहोश लड़की कौन थी। इतनी देर से हसीफ उसी का जिक्र कर रहा था। वो सागून की महबूबा ही हो सकती थी, आज रात जिसे कुर्बान किया जाने वाला था। शैतान बुढ़ा हसीफ उस नरमो नादक और हसीन लड़की का खून पीने वाला था। और फिर दो लड़कियां कहीं से ढोल की तर्ज के दो ऐसे चोबी खूब उठा लाई जिनके एक सिरे पर चिमड़ा बांधा हुआ था और वो दोनों उन ढोलों को एक दीवार के करीब रखकर उनके पीछे खड़ी हो गई। हसीफ अपनी जगह से चलता हुआ सामर के पास पहुंच गया और फुंकारा, तूने हसीफ को धोखा देने की कोशिश की थी और तू अपने जुर्म से खूब वाकिफ है। क्या तू हसीफ के कहर को भूल गया? तुझे इस भूल की सजा जरूर मिलेगी। सामर के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर वो चीखा ना चिल्लाया, ना उसने कोई फरियाद की। वो खामोश खड़ा था और मेरी नजरें सामर ही की तरफ उठी हुई थी। मुझे उस पर बहुत तरस आया जो महज मेरी वजह से संग दिल हसीफ के असाब का निशाना बनने वाला था। मैं उसके लिए अपने दिल में इंतहाई दुख महसूस कर रही थी और अपनी खुद गर्जी पर शर्मिंदा भी। और मैंने दिल ही दिल में कहा, काश ऐ सामर मैं तेरी जान बचा सकती। तूने चंद ही लम्हों की मुसरत के लिए अपनी जिंदगी खो दी। और अचानक सामर ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। निगाहों से निगाहों का टकराव हुआ तो मैंने उसकी आंखों में अपने लिए अफसुर्दगी और जज्बा तरहम का रचा हुआ पाया। गोया वो अब भी मेरे लिए मुतफक्कर था और अपने अंजाम की परवाह नहीं थी। अगर मैं उस वक्त सामर से कुछ कह सकती तो ये जरूर कहती कि आ सामर, मुझे माफ कर देना, मैं मोहब्बत में सच्ची नहीं थी, तुझसे मुखलस नहीं, और मैंने सिर्फ अपने साथियों के रिहा कराने के लिए तुझे मोहब्बत का फरेब दिया है। और उसी लम्हे हसीफ ने हाथ उठाकर ढोलों के पीछे खड़ी हुई लड़कियों को इशारा किया। लड़कियां ढोल पर थाप देने लगी। अजीब बेहंगम सी आवाजें उभरी और हसीफ के 3 कनीजें खंजा लहराती उस थाप पर रक्स करने लगी। हसीफ अपने सीने पर हाथ बांधे एक तरफ खड़ा था और नीम बरहना कनीजों का नाच भी ढोलों की थाप की तरह वैश्याना होता चला गया। वो सामर के गिर्द दायरे की सूरत में रक्स कर रही थी और वह बार बार खंजर तान कर सामर की तरफ यूं झपटती जैसे खंजर उसके जिस्म में उतार देंगी और सामर झुर्झुरी लेकर रह जाता। उसके जिस्म से पसीने छूट रहे थे। अलाव की रोशनी में रकासाएं बदरूहें मालूम हो रही थीं।
माहौल खौफनाक होता गया और सामर खंजरों से बचने के लिए कभी एक तरफ घूम जाता, कभी दूसरी जानब। हसीफ ये दहशतनाक खेल बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। अचानक तीनों रकासाएं सामर पल पल पड़ी और सामर के मुंह से चीख निकल गई। लड़कियों ने उसका लिबास तार तार कर डाला। सामर की हालत देखकर मेरा कलेजा कट गया। वो मेरी खुदगर्दी की भीड़ चढ़ चुका था। हसीफ का इशारा पाकर कनीजें सामर की लाश को बड़ी बेदर्दी से घसीटती हुई एक तरफ ले गई। हसीफ ने पलटकर अकवा और सागून की तरफ देखा। उसकी आंखें किसी अंदरूनी जोश के तहत चमक रही थीं। वो शानदानी अंदाज में मुस्कुराया और फिर अपनी जगह से चलता हुआ बेहोश लड़की के पास पहुंच गया। वो जिंदगी से भरपूर एक खेल खत्म हो चुका था और दूसरा शुरू होने वाला था। नीचे रखे हुए बर्तन में खून गिरने लगा और मुझे वह मंजर मजीद देखने की ताब नहीं रही और कर्बो आलम में मेरे जहन पर धुंधलका सा तारी कर दिया और मैंने उधर से अपनी नजरें हटा ली। मगर कब तक? मेरी नजरें जरा ही देर के बाद फिर उसी तरफ उठ गई। लड़की के बदन का खून कटी हुई रग से बह बह कर बर्तन में जमा हो रहा था। हसीफ करीब रखे हुए एक और बर्तन से जर्द रंग का कोई सफूफ निकाल कर खून वाले बर्तन में चुटकी चुटकी फैलता फेंकता जा रहा था और ये यकीनन उसी सफूफ का असर था कि खून जम नहीं रहा था और लम्हा बेलम्हा लड़की के जिस्म की रंगत फीकी पड़ती जा रही थी। चेहरा जर्द होता जा रहा था और हाय गुजरता हुआ लम्हा उसकी जिंदगी की मौत से करीब तले जा रहा था। बर्तन में खून की मकदार बढ़ती गई और लड़की की जिंदगी की घड़ियां घुटती चली गईं और फिर उसका सर एक तरफ ढलक गया। सागून की महबूब तरीन हस्ती जिंदगी की हदूद फलांग गई थी और लड़की के जिस्म का तमाम खून नुचड़ कर बर्तन में जमा हो चुका था। हसीफ दूसरे बर्तन से कोई गाढ़ा या फ्याल उसमें मिला रहा था और फिर हसीफ उठ खड़ा हुआ। खून से भरा हुआ बर्तन उठाकर उसने अपने मुंह से लगा लिया। वो इंसानी खून को अमृत की तरह पी रहा था। बर्तन खाली हो गया तो वो उसके अंदर मुंह डालकर उसे कुत्ते की तरह जुबान से चाटने लगा। कोई बर्तन जुबान से चाटते हुए जैसे कुत्ते के मुंह से आवाजें निकलती हैं, ऐसे ही चपड़ चपड़ की आवाजें हसीब के मुंह से निकल रही थी। हसीब ने खून पीकर जब बर्तन की एक तरफ रखा तो उसकी बाछों से लहू के कतरे टपक रहे थे। इस वक्त वो कोई खून आशाम दरिंदा ही नजर आया। इतना ज्यादा खून एक ही वक्त में पी जाना भी मेरे नजदीक हैरान कुन बात थी। और फिर हसीफ ने अकवा और सागुन की तरफ देखकर कहका लगाया और उछल उछल कर नाचने लगा। उस मरहले पर हसीफ की कनीजें भी सरासीमा नजर आ रही थीं और उसके शैतानी कहके मेरे दिमाग पर हथौड़ों की तरह बरस रहे थे। अचानक हसीफ कहके लगाते लगाते चुप हो गया और फिर मेरे करीब आकर कहने लगा, ऐ शाम के फन वाली, तूने अपनी कुर्बानी का मंजर देख लिया ना। अब मुझे इबादत करने जाना है। मैं पहली कुर्बानी कर चुका हूँ, मगर तू भी मेरे साथ चलेगी। इस तरह की आग की परस्तिश करने में मेरा दिल लगा रहे, इस ख्याल से कि परस्तिश के बाद मुझे तेरा कुर्ब नसीब होगा और वहाँ जगह तेरी साथियों की कब्र भी बनेगी। मुश्तरका कब्र। क्या तू अपने साथियों की मुश्तरका कब्र नहीं देखेगी? तुझे मैंने जब वक्त से पहले तेरी मौत का मंजर दिखा दिया तो फिर अपने साथियों की आखिरी आरामगाह भी देख ले। ये रात तेरे लिए बड़ी खुशियों की रात है और जब ये रात खत्म होगी तो तुझे एक ऐसी खुशी मिल चुकी होगी जिसका दुनिया में कोई बदल नहीं। हाँ, तू कवारी नहीं रहेगी। अकवा और उसके बेटे सागुन को भी उनकी आखिरी आरामगाह दिखाने ले जाऊंगा और आखिर ये क्यों महरूम रहे तेरे साथी तो मुकद्दस मशरूब पीकर ये अपने होशो हवास में नहीं हैं। उन्हें वहां ले जाना लाहासिल ही है। जब मैं तुझे साथ लेकर यहाँ लौटूंगा तो उन्हें होश में ले आऊंगा ताकि ये भी तेरी खुशी में शरीक हो सकें। वो शैतानी बूढ़ा मुझे अहरस, नसार और महापुजारी के सामने बेआबरू करने की बात कर रहा था और मेरी रूह में नश्तर से उतर रहे थे। अपनी जिल्लत के एहसास से मैं चीख उठी और जो भी बुरा भला मुंह में आया हसीफ को कहने लगी, मगर वो जितना बुरा था उतना बुरा लफ्ज अभी आजाद नहीं हुआ था। जितना चीख सकती है चीख ले ऐ शाम के फन वाली, इसका मौका तुझे बाद में नहीं मिलेगा। हसीफ ये कहकर जोर से हंसा। उसे यकीनन दूसरों की बेबसी पर कहके लगाने से बड़ी खुशी होती थी और फिर वो हंसते हंसते जाने क्या सोचकर चुप हो गया और खुद कलामी के अंदाज में बोला, मगर तू तो जंगली बिल्ली है, तुझे यूं वहां ले जाना खतरनाक होगा। तू वैसे भी अच्छी भली खूबसूरत, बातों पर बिला सब चीखने चिल्लाने लगती है। क्यों ना तुझे मेहर बेलोब कर दिया जाए। हाँ, यही ठीक रहेगा और ये काम भी उसी वक्त हो जाए तो अच्छा है। और फिर ना तो यूं चीख सकेगी और ना जुबान चला सकेगी, मगर सब कुछ देखेगी, सुनेगी और महसूस करेगी। हाँ, महसूस करेगी। यकीन करके इस हालत में वो खुशी भी पूरी तरह महसूस करेगी जो आज ही रात में तुझे बख्शूंगा। और वो एक बार फिर घटियापन पर उतर आया। चुप हो जा ए कमीने, ए गंदी नाली के कीड़े, ए बूढ़े शैतान, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैं फिर चीखने लगा।
वो हंसकर कहने लगा, ऐ शाम के फल वाली हसीन कबूतरी, तू मेरा खून पिएगी तो तू ज़बानी जमा खर्च ही कर ही रही है, और मैं तो वाकई तेरा खून पीऊंगा। और जिस तरह अपना दुश्मन अकवा के बेटे की महबूबा का खून पी चुका हूँ, तुझे कुछ और कहना है मुझसे कि मैं तेरी जुबान बंद कराने का हुक्म दूं? वैसे जब शदीद गुस्से की हालत में तू चीखने लगती है तो तेरा चेहरा खून की सुर्खी से झिलमिलाने लगता है, तो इसलिए मुझे कुछ और ही हसीन नजर आने लगती है। ये कहते हुए वो मलऊन मेरे बिल्कुल करीब आ गया, और आखिरी बार मैं तुझे चीखते हुए देखना चाहता हूं, ताकि तेरा असल हुस्न तेरे चेहरे पर नुमाया हो जाए। इसकी बात सुनकर मैंने सख्ती से अपने होंठ भींच लिए। अब मैं फैसला कर चुकी थी कि वो चाहे कुछ बकवास करता रहे, मुझे अब चीखना नहीं है, और मैं चीख कर चिल्ला कर उसके लिए सामान्य राहत फराहम करना नहीं चाहती थी। उस मलून ने मेरे भींचे हुए होंठ देखकर मेरा इरादा भांप लिया और हंसकर बोला, अच्छा तो अब तू चीखेगी नहीं, मगर तू शायद भूल गई कि मैं हरबाश देवता का हरकारा हूँ, और मुझे यह फख्र है कि मैं किसी को भी तशद्दुद किए बगैर भी चीखने पर मजबूर कर सकता हूँ, और तू जैसी कंवारियों को चीखने पर मजबूर करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तू अब तो मेरे बाएं हाथ का खेल देख। उन अल्फाज के साथ ही उसका एक हाथ मेरी तरफ बढ़ा, और फिर उसने एक ऐसी हरकत की कि मेरे फैसले की दीवार मुनहदम हो गई। मैं पागलों की तरह चीखे जा रही थी, और वह बड़ी बेहयाई से हंसे जा रहा था। बस एहसाम के फन वाली, इतना काफी है, उस खबीस बूढ़े ने हंसते हुए कहा, और फिर उसने अपनी कनीजों को हुक्म दिया कि मेरी जुबान बंद कर दें। उसका हुक्म सुनकर वो हरकत में आ गईं, और जिन्होंने अकवा और सागून की जुबानें बंद की थीं। मुशाहदे और तजर्बे में क्या फर्क होता है, मुझे उसका सही अंदाजा उसी वक्त हुआ जब एक कनीज ने खुद मेरे एक बाजू में खंजर उतारा, और लाख ज़ब्तो बर्दाश्त के बावजूद मेरे मुंह से बेख्तियार चीखें निकलने लगी। दूसरी कनीज ने जब मेरे जख्म में सफूफ भरा तो मुझे यूं लगा जैसे मेरे बाजू को उबलते हुए पानी में डाल दिया गया हो। इतनी शदीद अजियत कि मुझे खंजर का जख्म खाकर भी नहीं हुई, और फिर मेरे दूसरे बाजू पर भी खंजर आजमाई की गई और जख्म में सफूफ भर दिया गया, और चीख चीख कर मैं बेहाल हो गई। हैरत अंगेज तौर पर चंद ही लम्हों के बाद मुझे अपने बाजुओं के जख्मों में फरत अंगेज ठंडक उतरते हुए महसूस हुई, और उसी लम्हे मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी भनूर में घिर चुकी हूं, या कोई गिरदबार मुझे उड़ाए हुए ले जा रहा है, और मेरी बसारत खो सी गई। मेरे अतराफ अंधेरा फैल गया था, जैसे मैं किसी गहरे खिलाफ में गिरती चली जा रही हूँ, और फिर मेरे कदम जैसे जमीन पर जम गए। लेकिन अब मेरा अंग अंग झंझना रहा था, अंधेरा छटने लगा और मेरी बसारत फिर लौट आई। तब मुझे एक अजीब इंकशाफ हुआ कि जिसकी तस्दीक के लिए मैंने अपने सर को जुम्बश देने की कोशिश की, मगर ऐसा ना कर सकी। मैं मफलूज हो चुकी थी, हरकत करने की सकत छिन गई थी। और फिर जरा ही देर में उसके गुलाम 3 लकड़ी के तख्ते ले आए। मुझे सागून और अकवा को सतूनों से खोलकर उन तख्तों से बांध दिया गया, और फिर वो गुलाम अपने आका हसीफ की रहनुमाई में तख्तों पर हमारे जिस्मों को उठाए बीच तर बीच रास्तों और सुरंगों से गुजरते रहे। रफ्ता रफ्ता मुझे गर्मी और तपश का एहसास होने लगा, जो बढ़ता ही चला गया, और कुछ ही देर बाद तपश इतनी शदीद हो गई जैसे गुलामों के उठने वाले कदम मुझे जहन्नम के करीब ले जा रहे हों, और मेरा जिस्म फंक रहा था और जिस्म पर आबले पड़ते महसूस हुए। ना जाने मुझे वहां कहां ले जाया जा रहा था, शायद किसी आतिश फशां पहाड़ की पेट में। और मेरे ज़हन ने जवाब दिया, जहां उस बूढ़े शैतान को सयाल आग की परस्तश करना थी। हिद्दत अब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी, और फिर मैं रोशनी में आ गई, सुर्ख रोशनी में, मगर अब हिद्दत में और भी इजाफा हो चुका, और मेरे इतराफ सुर्ख और नागवार रोशनी थी, और बहुत ऊपर आसमान पर सितारे चमकते हुए नजर आए, और कहीं करीब ही हल्के हल्के धमाके हो रहे थे। इंसानी जिस्म की साखत कुछ ऐसी है कि वह रफ्ता रफ्ता हर माहौल को खुद का आदी बना लेता है। उसकी कुव्वत बर्दाश्त में खुद ब खुद इजाफा हो जाता है, और यही वजह थी कि हिद्दत की अजियत अब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त नहीं रही। और मैंने जो अंदाज़ा कायम किया, और चंद ही लम्हे बाद हसीफ ने उसकी तस्दीक कर दी। वो हम तीनों से मुखातब था। हम इस वक्त आग उगलने वाले पहाड़ के पेट में हैं। यहाँ नीचे मुकद्दस आग भड़क रही है, जो मेरे सूखे सड़े बदन को नई जिंदगी बख्श देगी। और उसकी आवाज़ पुरजोश थी, और फिर मैं तुम दोनों को बारी बारी इस आग में फेंक दूंगा, और उस शाम की फन वाली का खून पी जाऊंगा। वो बूढ़ा शैतान कतई पुरस्कून नजर आ रहा था, और यूं लगता था जैसे उस जहन्नम में उसके कोई अजियत महसूस नहीं हो रही हो।
ए शाम के फन वाली, वो मुझसे मुखातब हुआ, तूने देख ली अपनी साथियों की मुश्तरका और आखिरी आरामगाह, कितनी खूबसूरत है ये जगह। उसके होंठों पर बड़ी शैतानी मुस्कुराहट थी। अब मैं आग की परस्तश करूंगा और यूं बैठूंगा कि तेरा हसीन चेहरा मेरी आंखों के सामने रहे, ताकि परस्तश का वक्त आराम से गुजर जाए। तेरे खूबसूरत जिस्म पर मेरी नजर रहेगी तो मेरी खोपड़ी के किसी हिस्से में यह ख्याल भी रहेगा कि तू मुझे परस्तश करने के बाद तेरी मेहरबान जिस्म की राहतें मिलने वाली हैं। और ये कहकर वो चट्टान के आखिरी सिरे की तरफ बढ़ा जहां बैठकर उसे आग की परस्तश करना थी। और आगे बढ़ते बढ़ते उसने पलटकर एक बार मुझे नदीदी नजरों से देखा और खिलाफे तवक्का उसी लम्हे अकवा की आवाज गूंजी, रुक जा ए हसीफ, पहले मेरी बात मान ले। हसीफ ठठक कर रुक गया और मैं भी चौंक उठी। अच्छा, तो तेरे लहू से अफियात का असर खत्म हो गया, तू मेरे मसलत किए हुए अजाब से आजाद हो गया। हसीफ मुस्कुराया और जल्द कह दे जो कहना है। ऐ मेरे घटिया दुश्मन, अकवा नफरत अंगेज में कहने लगा, क्या तू समझ रहा है कि तूने सागून के महबूबा का खून पीकर मुझसे इंतकाम लिया? जान ले ए हसीफ कि सागून वाकई मेरा बेटा नहीं है, और तूने फिर ये फजूल बात क्यों छेड़ दी? हसीफ जल्लाकर बोला और पलटा। ए हसीफ, आग की परस्तश करने और नई जिंदगी पाने से पहले ये हकीकत सुन ले कि सागून दरअसल तेरा बेटा है। अकवा ने बुलंद आवाज में कहा और हसीफ बड़ी तेजी से पलटा। उसके चेहरे से शदीद हैरत का इज़हार हो रहा था। इस इंकशाफ पर मैं भी हैरान रह गई। यकीनन इस इंकशाफ से सागून के जहन को भी जबरदस्त झटका लगा और उसके चेहरे से मैंने यही कयास किया। क्या मौत के खौफ से तेरा दिमाग चल गया? हसीफ अकवा से मुखातब था। नहीं, ये उसी तरह हकीकत है जैसा कि मैं इस वक्त मौत के मुंह में खड़ा हूँ, अकवा जवाब में बोला। लेकिन मेरी बीवी सीना तो तेरे हाथों कत्ल हो गई थी, फिर ये मेरा बेटा कैसे हो सकता है? यही तो तेरी भूल है, अकवा मुस्कुरा दिया। मैं तेरी बीवी सीना पर रीझ गया था और मैंने उसी लिए उसे कत्ल करने के बजाय अपना कैदी बना लिया, मगर तू यही समझा कि वह कत्ल हो गई। अकवा इंकशाफ पर इंकशाफ किया जा रहा था और हसीफ होंठों की तरह मुंह फाड़े गुमसुम खड़ा था। अब अकवा अपने दुश्मन हसीफ से कह रहा था कि मैं तेरी बीवी को गोरस के ले आया था। तू जानता है कि उस वक्त सीना की गोख में तेरा बच्चा पल रहा था और मुझे सीना के लिए कुछ दिन सब्र करना पड़ा, और फिर जब उसने तेरे बेटे को जन्म दिया तो मैंने उसे जंगल में फेंकवा दिया। उसी रात सिर्फ मैं या तरीबी और उसकी बीवी वाकिफ थे। तरीबी की बीवी ने सीना को बच्चे जनने में मदद दी और मैंने उन दोनों मियाँ बीवी को कत्ल करा दिया, क्योंकि बस्ती में बगावत हो जाती और अगर बस्ती वालों को इल्म हो जाता कि मैंने गोरदास के दुश्मन की बीवी को अपने महल में बच्चा जुड़ने की इजाजत दी, उसके बावजूद मैं तेरी हसीन बीवी सीना से अपनी ख्वाहिश पूरी ना कर सका और तेरी बावफा बीवी सीना ने मेरे हाथ लगाने से पहले ही खंजर से अपने सीने में शगाफ डालकर जान दे दी। अकवा यह कहकर रुका। एक दिन मैं अपने बहादुरों के साथ जंगल में शिकार खेलता फिर रहा था कि मुझे अलवस ज़दा नजर आया, जो अपनी दूसरी माँ की छातियों से लिपटा हुआ था। सुन ए मेरे दुश्मन, वो तेरा ही बेटा था जिसे देवताओं ने अलवस ज़दा बना दिया और मैंने उसे पहचान लिया। अकवा हकायक से पर्दा उठा रहा था। अगर मुझे पहले से ये अंदेशा होता कि वो अलवस ज़दा बन जाएगा तो मैं उसे जन्म लेते ही जमीन में दबा देता। मैं उसी वक्त अपनी नादानी पर बहुत पछताया, लेकिन मुझे देवताओं के फैसले पर अमल करना पड़ा और अलवस ज़दा मेरी गोद में आ गया। अब उसकी तकलीफ मुझ पर फर्ज थी, मगर तू जरा सोच ए हसीफ कि मैं उसे अपनी बस्ती में ये इज्जत कैसे दे सकता। बेशक वो अलवस ज़दा था, देवताओं का चहेता था, मगर था तो तेरा खून और मुझे तेरी कसम याद थी। मुझे यकीन था कि तू जिंदा रहा तो मुझसे इंतकाम लेने जरूर आएगा। तब मेरी खोपड़ी में एक तदबीर आई और मैंने अलवस ज़दा की असलियत को छुपाने का फैसला कर लिया और शर्जिया ने भी मेरा साथ दिया, हालांकि वो भी नहीं जानता था कि अलवस ज़दा तेरी औलाद है और वह यही समझता रहा कि मैं अपने बेटे की खातिर सब कुछ कर रहा हूँ। सागून तेरा बेटा जवान होकर भी खुद मेरी ही औलाद समझता रहा और मैं उसकी उस दिन का मुंतज़िर था जब तू इंतकाम लेने आता और तेरा ही बेटा तेरे सामने सीना तान कर खड़ा होता और फिर तू उसके हाथों मारा जाता या तेरा खांडा उसकी गर्दन उड़ा देता। लेकिन शर्जी ने नमक हरामी की और सागून को उसकी हकीकत से आगाह करके मुझसे बागी कर दिया। उस दौरान मैं तेरे गुलाम शर्जिया की बेटी को उठा लाया जो तेरे ही बेटे की महबूबा थी। तब मैंने तेरे बेटे को तेरे खिलाफ बहका कर कबीते रवाना कर दिया। मैं तेरी लाइल्मी से फायदा उठाकर अपने दोनों दुश्मनों से निजात हासिल करना चाहता था। शर्जिया को मैंने रास्ते ही में कत्ल करा दिया और मैं उसकी नमक हरामी को माफ नहीं कर सकता था। मुझे यकीन था कि सागून तुझ पर कहर के देवता की तरह टूट पड़ेगा और ये अपनी महबूबा की खातिर देवताओं से भी टक्कर ले सकता था।
मगर मुझे कैसे खबर होती कि बेटे ने बाप की गर्दन उड़ा दी या बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया। यही सोचकर मैंने भी इधर का रुख किया कि तुम दोनों में से जो जिंदा बचे उसे मैं ठिकाने लगाकर ये फितना हमेशा के लिए खत्म कर दूं। और देवताओं ने मेरा साथ ना दिया और मैं पकड़ा गया। उसके बावजूद मैं घाटे में नहीं रहा। जीत मेरी ही हुई। तूने मेरी निगाहों के सामने अपने बेटे की महबूबा का खून पिया और अपने बेटे की बेबसी पर कहके लगाता रहा। तूने मुझे मफलूज कर दिया था, वरना मैं भी उस वक्त तेरे साथ कहके लगाता। लेकिन तेरी गलतफहमी और अपनी चाल की कामयाबी पर मेरे दिल ने तुझसे ज्यादा कहके लगाए थे। अब बता ऐ मेरे दुश्मन कि तू जीता या अकवा। इंतकाम तो तूने मेरी नस्लों से लिया या मैंने तुझसे। अकवा ने यह कहकर जोरदार कहका लगाया जिसकी बाश गश्त खौफनाक थी। मकरू फरेब की यह दास्तान एक ऐसा इंकशाफ था जिसने हसीफ पर वहशत सी तारी कर दी और वो हाथ फैलाकर अकवा की तरफ बढ़ा जैसे उसकी गर्दन मरोड़ देगा। अकवा जैसे पागल हो गया था और वह हल्क फाड़ फाड़ कर कहके लगाए जा रहा था। हसीफ के हाथों की आहनी शिकंजों की तरह अकवा की गर्दन जकड़ ली और अकवा के कहके दम तोड़ गए। अचानक हसीफ की गर्दन ढीली पड़ने लगी, चेहरे के अदरात फूलने लगे और जिस्म ईंटने लगा और मेरी नजरें उसी के चेहरे पर जमी हुई थी। यूं लगता था जैसे वो अंदरूनी तौर पर किसी नाकाबिले बर्दाश्त अजियत से दो चार हो। उसकी आंखों में हल्कों से उबली पड़ रही थी और अकवा भी हैरत से हसीफ को देख रहा था। अचानक हसीफ के नथनों से खून की धारें फूट पड़ी और मैं समझ गई कि यह अकंवारी के गर्म लहू और जड़ी बूटियों का असर था कि हकीकत जान लेने के बाद उसके अपने खून में जो उबाल आया तो यकीनन यह हिद्दत और तपश उसके बदन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। और मेरे देखते ही देखते हसीफ ने खून की कै की और मुंह के बल गिर पड़ा। उसकी रगें फट गईं, हत्ता कि उसके मसामों से भी लहू फूट पड़ा। उसने आखिरी बार अपने बेटे सागून की तरफ देखा और फिर उसकी आंखें सागून को इंतहाई हसरत तो याद से देखते देखते बेनूर हो गई। उसका एक तरफ का उठा हुआ सर गिर गया। अकवा दोबारा जोर जोर से हंसने लगा और चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि मैंने सागून के जिस्म में हरकत महसूस की। यकीनन अब उसका जिस्म भी मफलूज नहीं रहा था और उसने सर घुमाकर अय्यार अकवा को ऐसी नजरों से देखा कि अकवा हंसते हंसते एकदम सहम कर खामोश हो गया। उसकी आंखों से खौफ झांकने लगा। सागून इतनी सख्ती से दांत बीच रखे थे कि जबड़ों की हड्डियां नुमाया हो गईं। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। तू इस कहानी पर यकीन ना कर ऐ मेरे बेटे सागून जो मैंने हसीफ को सुनाई। अकवा रुक रुक कर खौफजदा सी आवाज में कहने लगा, मैंने अपनी और तेरी जान बचाने के लिए फरेब से काम लिया था। काश तेरी खबासत से पहले ही मैं जान लेता ऐ अकवा। सागून अकवा की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा और फिर वो किसी आतिश फशां की तरह फट पड़ा। पहले तूने मेरे बाप की बस्ती उजाड़ी, फिर मेरी माँ की आबरू से खेलना चाहा और मुझ पर भी सितम तोड़ता रहा और तेरी वजह से मेरे बाप ने मेरी आंखों के सामने मेरी महबूबा का खून पिया जो मासूम और बेगुनाह थी। अब तू मेरे बाप की मौत के सबब भी बना। तूने मक्कारी और अय्यारी से दरिंदगी की ऐसी दास्तान तरतीब दी जिसका अंजाम तो खुद बने और बनने वाला है। अब तेरी मौत इतनी भयानक होगी कि पहाड़ों के पेट में दहकती हुई ये आग भी खौफ से सर्द पड़ जाएगी। ये कहते हुए वह दौड़ता हुआ अकवा की तरफ बढ़ा। उसी दौरान में उसने पुष्ट पर बंधे हुए अपने हाथों के बंधन को तोड़ने के लिए पूरा जोर लगा दिया मगर उसे कामयाबी ना हुई। अकवा के हाथ भी पुष्ट पर बंधे हुए थे वरना वो कोई मुदाफत का हरबा इस्तेमाल करता और खुद मेरा भी यही हाल था। बूढ़ा शैतान हसीफ अपने अंजाम को पहुंच चुका और उन दोनों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। जाहिर है कि उनमें से जो भी जिंदा बच जाता वो मेरा रास्ता ना रोकता। रुक जा सागून, अकवा जोर से चीखा, वरना मेरे साथ तू भी जिंदा नहीं बढ़ सकेगा। ये कहते हुए अकवा पीछे हटने लगा जहां नोकीली चट्टान के नीचे कुछ फासले पर ज्वालामुखी दहक रहा था और सागून आग उगलने वाले असदे की तरफ हुंकारता हुआ उसकी तरफ बड़ा चला जा रहा था और चंद मुख्तसरी सांसों में अकवा पीछे हटता हुआ चट्टान के आखिरी सिरे तक पहुंच गया और उसने एक नजर पलट कर नीचे देखा और उसके चेहरे पर दहशत फैल गई। उसने अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी, तुझे देवताओं का वास्ता सागून, रुक जा। और फिर वो चीखा। नहीं नहीं, सागून भी चीख उठा और फिर सागून सर झुकाकर अकवा पर झपटा और वो शायद अकवा के सीने पर अपने सर की टक्कर मारना चाहता था मगर जैसे ही सागून अकवा के करीब पहुंचा अकवा अचानक तेजी के साथ एक तरफ झुक गया। सागून फौरी तौर पर रुक ना पाया और वह चट्टान के आखिरी सिरे तक पहुंच गया था। उसके कदम उखड़ गए और जिस्म का तवाज़ुन बिगड़ गया। लेकिन उन मुख्तसर लम्हों में उसकी बाईं टांग बरवकत और तेजी से हरकत में आई। सागून की टांग अकवा की दोनों टांगों में उलझ गई थी और फिर अकवा भी ना समझ सका और दोनों की आखिरी चीखें
इंतहाई वहशतनाक थी, जिनकी गूंज उनकी जिंदगी से ज्यादा देर साबित हुई, और मैं उन दोनों को चट्टानों से आतिश फशां की तह में गिरते देखा था। एक झपाका हुआ और खोलते हुए लावे ने दोनों को आगोश मादर की तरह समेट लिया। जाहिर है कि उनके जिस्म पलक झपकते में तहलील हो गए थे। हल्का सा धुआं उठा और चांद फैल गई। उस अरसे में मेरा मफलूज जिस्म भी अपनी साबका हालत पर वापस आ चुका था, और मैं तेजी से आगे बढ़कर नोकीली चट्टान के सिरे तक पहुंची। चंद ही लम्हों को मैं चट्टान के सिरे पर सहरज़दा सी खड़ी खोलते हुए लावे को देखती रही, जिसने मेरी आंखों के सामने दो जिंदा जिस्मानों को निगल लिया। और फिर मैं पलटी तो मेरी निगाह हसीफ की लाश पर पड़ी, और वह सदियों से जिंदा रहने की आरज़ू अपने दिल में लिए मौत की भयानक वादी में पहुंच चुका था। अब मैं वहां बिल्कुल तन्हा थी, और मुझे यह मालूम नहीं था कि वहां से मुझे किस तरह निकलना नसीब होगा, और मेरे लिए वहां कदम कदम पर खतरा था। दाएं जाने मुझे नीम तारीख सी एक सुरंग नजर आ रही थी, और मुझे यकीनन वहीं से उस जहन्नम तक लाया गया था। अपनी आज़ादी के लिए यहाँ से फरार होने के अलावा मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी और भी थी, और मुझे हर कीमत पर उस जगह पहुंचना था जहां आहरस नसार और महापुजारी को सतूनों से बंधा हुआ छोड़कर आई थी। उन्हें रिहाई दिलाए बगैर वहां से मेरा फरार होना कतई बेमानी था, और मेरी सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि मेरे दोनों हाथ पुष्ट पर बंधे हुए थे। हाथ बंधे होने की सूरत में मेरे लिए किसी खतरे से निपटना मुमकिन नहीं था। इसके बावजूद खतरे का सामना करना था। उस ख्याल के साथ ही मेरे कदम खुद ब खुद नीम तारीख सुरंग की तरफ उठने लगे, और मुझे मालूम नहीं था कि मैं उस सुरंग से गुजरकर कहां पहुंचूंगी। कुछ दूर जाकर वह सुरंग दो हिस्सों में बट गई। दाएं जन्म बिल्कुल तारीकी थी, और बाएं जन्म खासे फासले पर रोशनी नजर आई। आदमी की यह फितरत है कि अमूमन वो रोशनी ही को तरजीह देता है, चाहे रोशनी में उसके लिए तारीकी से भी ज्यादा खतरात हों। शायद इसी सबब मेरे कदम बाएं तरफ उठने लगे, और मैं रोशनी की तरफ बढ़ती रही, और आखिरकार उस सुरंग से निकलकर एक छोटे से दलान में पहुंच गई। वहां दाएं जन्म की एक दीवार में मुश्तल मशल प्यूसत थी, और सुरंग के अंदर से मुझे उसी मशल की रोशनी नजर आई थी, और सामने ही मुझे संकी सीढ़ियां नजर आ रही थी, जिनकी बाएं जन्म किसी कोठरी का दरवाजा था जो बंद था। सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही थीं। चुप हो जा, उस कोठरी की तरफ से मुझे एक मर्दाना सरगोशी सुनाई दी, और मैं चौंक उठी। सरगोशी फिर उभरी, और मुझे बाहर से किसी के कदमों की आवाज, कहीं वो सरदार ना हो। खौफजदा सी नस्वानी आवाज आई। आवाज बहुत धीमी थी। अगर वो सरदार होता तो फिर तेरी और मेरी खैर नहीं, वो हम दोनों को कत्ल कर देगा। और मेरे आगे बढ़ते हुए कदम रुक गए। उन सरगोशियों से मैंने ये बखूबी अंदाजा लगा लिया था कि उस कोठरी में एक मर्द और औरत हैं, जो छुप कर शायद अपनी दास्तान मोहब्बत में विसल के रंग भर रहे थे। वो औरत मसीनफ की कोई कनीज और मर्द गुलाम हो सकता था, या फिर कोई खिदमतगार। क्या तू भूल गई कि सरदार इस वक्त आग की परस्तश कर रहा होगा? मर्द ने औरत से कहा। और फिर जब वो परस्तश से फारग होगा, उसे गुलामों की जरूरत पड़ेगी, तो वहां मौजूद सुराख में मुंह डालकर मखसूस आवाज निकालेगा। उसके मुंह से महफूज आवाज निकलते ही मुझे यहाँ सामने वाले सुराख के जरिए फौरन खबर हो जाएगी, और फिर मैं फौरन ऊपर जाकर सरदार का हुक्म उसके गुलामों तक पहुंचा दूंगा। और मैं उसी लिए तो तुझे इस कोठरी में लेकर आया था। मगर ठहर, ये तो मैं भूल ही गया कि बाहर कोई था, और मैं देखता हूँ तू इसी तरह पड़ी रह। अब वहां मेरा मजीद उसी जगह खड़े रहना खतरे से खाली नहीं था, और मैं उस लिए लपक कर सीढ़ियों तक पहुंची, और 2-3 सीढ़ियां चढ़कर दीवार से चपक गई। एन उसी लम्हे मेरे समाज से दरवाजा खुलने की आवाज टकराई, और मेरे असाब तन गए। यहाँ तो कोई नहीं है। कोई बड़बड़ाया, और मेरा वहम होगा। उस शख्स ने यकीनन दरवाजा खोलकर देखा होगा, और जाहिर है उसे दालान में कोई नजर नहीं आया। चंद कदम चलकर दाएं और बाएं जन्म मुझे 2 बड़े सुराख नजर आए। सुराख इतने बड़े थे कि उनमें बाआसानी दाखिल होना मुमकिन था, और मैंने बाएं जन्म वाले सुराख में झांक कर देखा, और वह बंद होता चला गया, और मैं बहुत एहतियात के साथ उस सुराख में दाखिल हो गई। उसकी सतह बेहद चिकनी थी, और मैं नीचे की तरफ फिसलती चली गई। सुराख से निकलकर मैं एक हमवार जगह गिरी, और दूसरे ही लम्हे उठकर खड़ी हो गई। हल्की सी हैरतज़दा चीख सुनकर मैं चौंक उठी, और बाएं तरफ मुड़कर देखा। मुझे वहां फर्श पर एक औरत बैठी हुई नजर आई, जिसके जिस्म पर बराए नाम लिबास बहुत बोसीदा और मैला नजर आ रहा था। उस औरत के सर के बाल खुले हुए थे, और चेहरे पर वहशत थी, और मुझे वो खौफजदा चीख निकली थी। मैंने एक ही नज़र में उस जगह का जायजा ले लिया। वो एक छोटी सी कोठरी थी, जिसका दरवाज़ा सामने ही नजर आ रहा था, मगर वो बंद था। मैं लाइल्मी में जाने कहाँ आ गई। इस सुराख में दाखिल होने से पहले मुझे राहदारी का मुकम्मल जायजा लेना जरूरी था। मुझे इतनी जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए था, मगर अब देर हो चुकी थी। ऐ औरत, तू कौन है? मैंने उस पागल सी औरत को मुखातब किया। उस औरत के मुंह से आवाज निकली, आ आ।
और फिर उसने अपने मुंह खोल दिया और फिर उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियों से जो इशारा किया, मैं उसे सुनकर लर्ज उठी। वो शायद ये समझी कि मैं उसका इशारा नहीं समझ सकी हूँ, इसीलिए वो दोबारा वही इशारा करने लगी और मैं समझ गई कि तेरी जुबान काट दी गई है। मैं बोल उठी और आगे कदम बढ़ा कि उसके आसपास पहुंच गई। औरत ने इस बात में सर हिलाया। अब तू ऐसा कर कि मैं तुझसे जो कुछ पूछूंगी उसका जवाब सर हिलाकर इकरार या इनकार में कर दे। और मैंने उससे उस गुफ्तगू की एक राह निकाली। उसके सामने इकरार में हरकत की। इसका मतलब यह था कि वह मुझसे तावन करने पर आमादा थी। क्या तुझे इस कोठरी में कैद कर दिया गया? मैंने उससे पहला सवाल किया और मुझे पहले इस सवाल का जवाब मिल गया जो इकरार में था। क्या कोठरी का दरवाजा बाहर से बंद रहता है? और जवाब में सर इस बात में हिला था, गोया मैं वहां आकर उस औरत के साथ कैद हो गई और ये सूरत हाल मेरे लिए तशवीशनाक थी। और फिर उसी वक्त मुझे अपने बंधे हुए हाथों का ख्याल आया। वो औरत मुझसे तावन कर रही थी और उसके दोनों हाथ खुले हुए थे। क्या तू मेरे बंधे हुए हाथ खोल देगी? और मैंने अपने दोनों हाथ उसकी तरफ कर दिए और मेरे हाथ बहुत मजबूती से बांधे गए थे और गिरहें यकीनन बहुत सख्त थी। इसीलिए उसे जल्द कामयाबी नहीं हुई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और कोशिश करती रही। और चंद लम्हे बाद मैंने महसूस किया कि गिरहों को खोलने के लिए वो अपने दांत इस्तेमाल कर रही है। अगर कुछ और ना सही, उस बंद कोठरी में अगर मुझे इतना फायदा जरूर हुआ था कि पुश्त पर बंधे हुए मेरे हाथ अब खुलने वाले थे। आखिरकार वो औरत गिरहों को ढीला करने में कामयाब हो ही गई और फिर उसने मेरे हाथों खोल दिए और मैंने उसकी तरफ मुड़कर ममनून नजरों से देखा और बोली, तू बहुत अच्छी है, मैं तुझे इस कैद से रिहाई दिला दूंगी। दरवाजे के करीब जाकर मैंने दूसरी जानब कोई आहट सुनने की कोशिश की, मगर कोई आहट सुनाई नहीं दी। मुझे मालूम था कि ये रात का वक्त है, लेकिन इससे बेखबर थी कि कितनी रात गुजर चुकी है और कितनी बाकी। यहाँ आकर मैंने कुछ सोचकर औरत को अपने करीब आने का इशारा किया। वो हैरान सी मेरे करीब आकर खड़ी हो गई तो मैंने उससे कहा कि मैं दरवाजे की उन सलाखों के जरिए बाहर देखना चाहती हूँ, तू बैठ जा और मैं तेरी कमर पर चढ़कर सलाखों तक पहुंच जाऊंगी। क्या तू मेरा बोझ बर्दाश्त कर लेगी? और कोई जवाब देने की बजाय वो दरवाजे के करीब इस तरह साथ झुकाकर बैठ गई कि मैं उसकी पीठ पर चढ़ सकूं। तू बहुत अच्छी है, मैंने उसकी फिर तारीफ की और फिर वह झुकी हुई औरत के ऊपर चढ़ गई। मैंने सलाखों से बाहर देखा तो मुझे दाएं और बाएं जानबी दो कोठरियां नजर आईं। उनमें भी वैसे ही दरवाजे नजर आ रहे थे जैसा दरवाजा वो था और जिससे मैं बाहर देख रही थी। मालूम नहीं इन कोठरियों में कोई था भी या नहीं, बाहर तो सन्नाटा ही था और सामने कुछ ही दूर चंद सीढ़ियां दिखाई दे रही थीं, जिनके बाद सपाट दीवार थी। और मैंने सोचा कि शायद ये दीवार भी आखिरी सीढ़ी पर कदम रखने के बाद अपनी जगह से खिसक जाती होगी और दरवाजे के ऊपर लगी हुई सलाखों के दरमियान इतनी जगह थी कि मैं अपना हाथ बाहर निकाल सकती। और मैं दाएं और बाएं जानब की कोठरियों के दरवाजे देखकर ये जान चुकी थी कि कुंडी दरवाजों के दरमियान में थी और दोनों कोठरियों के दरवाजे की कुंडियां बाहर से लगी हुई थीं। मैंने सलाखों के दरमियान से हाथ बाहर निकालकर कुंडी तक ले जाना चाहा, मगर नाकाम रही और मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच सका। उसी वक्त मुझे जलती हुई मशल का ख्याल आया। उस तक मेरा हाथ जा सकता था, लेकिन उससे क्या फायदा होगा, मैंने सोचा और मेरे ज़हन ने फौरन ही इसका जवाब दिया। रोशन मशल के जरिए लकड़ी के दरवाजे में आग लगाई जा सकती है। और इसके ख्याल के साथ ही मेरा हाथ मशल के दस्ते तक पहुंच गया और मैंने जरा सी कोशिश के बाद दीवार में प्यूसत मशल निकाल ली और मशल के दस्ते का इब्तदाई हिस्सा तो सलाखों के दरमियान से अंदर कोठरी में आ गया, मगर दस्ता बेतदरीज मोटा होता चला गया था। इसलिए दरमियान तक अंदर आने के बाद दो सलाखों के दरमियान फंस गया। अब उसे मजीद अंदर लाना मुमकिन नहीं था। फिर मुझे ख्याल आया कि वो गरीब औरत जो मुझे अपने पुश्त पर उठाए हुए थक गई होगी। ये सोचकर मैंने मशल को सलाखों के दरमियान फंसा कर छोड़ दिया और उसकी पीठ से उतर गई। वो उठ खड़ी हुई और मुझे सवालिया नजरों से देखने लगी और फिर उसकी निगाह ऊपर उठी और उसकी नजरें सलाखों के दरमियान फंसे हुए मशल के दस्ते पर मरकूज थीं। और मैंने उसे बता दिया कि मेरा इरादा क्या है और वो इस तरह सर हिलाने लगी जैसे कुछ सोच रही हो। फिर मैंने देखा कि वो अपने जिस्म पर बराए नाम मौजूदा बोसीदा लिबास की धज्जियां फाड़ने लगी और फिर वो इशारे से मुझे कुछ समझाने की कोशिश करने लगी और मैं मुश्किल समझ सकी कि वो क्या चाहती है। उस औरत ने बहरहाल मुझे एक राह दिखाई थी, मगर सिर्फ उन धज्जियों से कुछ नहीं हो सकता था। उसका मकसद ये था कि मैं उन धज्जियों में मशल से आग लगा लूं। उन धज्जियों से दरवाजों में आग लगाना मुश्किल था और यही सोचकर मैंने अपने जिस्म का ऊपरी ही लिबास उतार लिया। अब मेरे बलाई जिस्म पर सिर्फ चमड़े की बनी हुई एक चोली रह गई और मेरे जिस्म के ज़ाहरी हिस्से पर जो लिबास था उसे भी मैंने बाएं जानब से फाड़ कर खासा कपड़ा निकाल लिया।
इस दौरान उस औरत ने भी मेरे सामने धज्जियों का छोटा सा ढेर लगा दिया। अब उसके जिस्म पर सिर्फ चंद ही धज्जियां रह गई थी जो होने और ना होने के बराबर थी। बहरहाल उनसे किसी हद तक उसकी सत्तरपोशी जरूर हो रही थी। मैंने वो सारी धज्जियां दरवाजे के करीब जमा की और इसके अलावा अपने जिस्म का ऊपरी लिबास और जिस्म के ज़ाहिरी हिस्से के लिबास से फाड़ा हुआ कपड़ा भी वहीं डाल दिया और फिर चंद धज्जियां अपने हाथ में लेकर उस औरत से बोली कि हमें बड़ी एहतियात से काम लेना होगा, आग से बचना है। अब तुझे एक बार फिर झुकना पड़ेगा ताकि मैं तेरी पीठ पर चढ़कर जलती हुई मशल से इन धज्जियों में आग लगा सकूं। और वो इकरार में सर हिलाकर फिर दरवाजे के पास बैठ गई और मैंने उसकी कमर पर चढ़कर सलाखों के दरमियान से एक हाथ बाहर निकाला और मशल की लो तक मेरा हाथ आसानी से पहुंच गया, क्योंकि उसका तकरीबन आधा दस्ता कोठरी के अंदर था। और धज्जियों में आग लग गई तो मैं नीचे उतर आई और बकिया धज्जियों के साथ दरवाजे के पास रखे अपने कपड़ों में आग लगा दी। और मेरी कोशिश ये थी कि किसी तरह दरवाजे में आग लग जाए, और मगर बेमुश्किल उसका कुछ हिस्सा ही जला होगा कि कपड़ों का ढेर जलकर राख हो गया। और मैं दरवाजे के जले हुए हिस्सों को फूंके मार मार कर मजीद जलाने और आग भड़काने की कोशिश करती रही, लेकिन मुझे नाकामी हुई। दरवाजे ने आग नहीं पकड़ी और छोटी सी कोठरी में धुआं ही धुआं भर गया। उसी वक्त किसी के जोर जोर से खांसने की आवाज मुझे सुनाई दी। क्या बाहर मौजूद दोनों कोठरियों में भी कैदी हैं? और मैंने अपने साथ कोठरी में मौजूद औरत से पूछा। उससे पहले कि वो औरत इनकार या इकरार में जवाब देती, एक मर्दाना आवाज आई, अरे ये धुआं कहाँ से आ रहा है? और मेरी कोठरी की सलाखों से यकीनन धुआं बाहर गया था। वो मर्दाना आवाज बाहर की किसी कोठरी से ही आई थी। इस दौरान उस औरत को भी खांसी उठाई और खांसते हुए उसने एक उंगली उठाई थी और बाहर मौजूद कोठरियों में से एक में से कोई कैदी है। और मैंने औरत से तस्दीक चाही और औरत ने इकरार में सर हिलाकर मेरे सवाल का जवाब दिया। उस मर्द कैदी की आवाज मैंने सुनी थी। इसका मतलब यह था कि वो भी मेरी आवाज सुन सकता था और मैंने सोचा कि शायद उससे कोई काम की बात मालूम हो सके। ए अजनबी कैदी, क्या तू मेरी आवाज सुन रहा है? और दरवाजे के करीब जाकर मैंने बुलंद आवाज में मुखातब किया, हाँ तेरी आवाज मुझ तक आ रही है, मगर तू कौन है? पहले तो कभी तूने मुझे आवाज नहीं दी। मुझे जवाब मिला। मैं समझ गई कि वो कैदी मुझे वहां मौजूद कैदी औरत से जान रहा होगा। उसे शायद मालूम नहीं कि मैं कैदी औरत की जुबान कटी हुई है। सुन, मैं वो नहीं हूँ जो तू मुझे समझ रहा है। मैंने उसकी गलतफहमी दूर कर दी। यहाँ जो औरत कैद है वो बोल नहीं सकती क्योंकि उसकी जुबान काट दी गई है। फिर वो भला तुझसे कैसे बात करती? फिर तू कौन है? मैं भी एक मजलूम औरत हूँ और भोले से इस कोठरी में आ फंसी हूँ, मैंने जवाब दिया। और फिर उससे मालूम किया कि ए अजनबी, तू मुझे ये बता कि यहाँ मुहाफिज कब आते हैं और क्या किसी तरह उन्हें बुलाया जा सकता है? वो बस एक ही वक्त खाना देने आते हैं, उसके अलावा इस वक्त मुझे मारने पीटने आते हैं। और जब मुझ पर दीवानगी का दौरा पड़ता है और वो चीख चीख कर उनकी नींदें हराम कर देता हूँ, अजनबी कैदी ने बताया। और फिर कहने लगा, और तेरी ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि तू भूले से इस कोठरी में आ फंसी। ये भी बता कि धुआं कहाँ से आ रहा है? और मैं यहाँ से निकलने का रास्ता तलाश कर रही थी और मुझे एक सुराख नजर आया और मैं उसमें दाखिल होकर फिसलती हुई इस कोठरी के अंदर आ गिरी। और यहाँ आकर मैंने कोठरी के दरवाजे में आग लगाने के लिए कपड़े जलाए थे, मगर दरवाजे में आग नहीं लगी। तेरे पास कोठरी में आग कहाँ से आ गई? और तू इस कोठरी में अगर गिरने से पहले कहाँ थी? और मैंने उस मशल के बारे में बता दिया और फिर कहा कि मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ थी। हाँ, ये मालूम है कि वो राहदारी थी जिसके सुराग से मैं उस कोठरी में आ गिरी। और मैंने तेरे दोनों सवालों के जवाब दे दिए हैं। अब तू ये बता कि तेरी आवाज मुहाफिजों तक पहुंच सकती है? और मेरी कोठरी की पिछली दीवार में कुछ ऊपर के, जहां तक मैं नहीं पहुंच सकता, आहनी सलाखें लगी हुई हैं। वहां से मुझे अक्सर मुहाफिजों की बातें करने की आवाजें आती हैं। शायद मेरी चीखों पुकार भी वो वहीं से सुन लेते होंगे। क्या इस वक्त भी तो उनकी आवाजें सुन रहा है? मैंने सवाल किया। नहीं, इस वक्त सन्नाटा है, उसने जवाब दिया। क्या तू मेरे कहने पर इस वक्त जोर जोर से चीख सकता है जैसे तुझ पर दीवानगी का दौरा पड़ गया हो? क्या मुझे उनके हाथों पिटवाना चाहती हो? नहीं, बल्कि मैं तुझे उस कैद से रिहाई दिलाना चाहती हूँ। जब वो आएंगे तो मैं खुद चीख चीख कर उन्हें अपनी तरफ मतवज्जा कर लूंगी। तू उस वक्त खामोश हो जाना और फिर वो तेरी कोठरी खोलकर तुझे मारने पीटने की बजाय मेरी कोठरी में आ जाएंगे और फिर वो मेरी बजाय तेरी खाल उधेड़ देंगे। तू मेरी फिक्र ना कर, मैं जो कहती हूँ वो कर। मेरी बात पर यकीन कर कि मैं तुझे रिहाई दिलवा दूंगी। तू शायद पागल हो गई है। उस बूढ़े शैतान की कैद से आज तक कोई रहा नहीं हो सका। उसे अपनी शैतानी कुव्वतों के जरिए सब कुछ खबर हो जाती है और फिर वो फरार होने वालों को पकड़ लेता है। फिर मालूम है फरार होने वाले की कोशिश करने वालों का क्या हशर होता है। बूढ़ा शैतान उन्हें आग उगलने वाले पहाड़ में फेंकवा देता है और मैं ऐसी भयानक मौत कबूल करने पर आमादा नहीं हूँ।
मेरा जी चाहा कि उसे बता दूं कि वह जिस बूढ़े शैतान के खौफ में मुब्तला है वह जहन्नम रसीद हो चुका है, मगर ये बात मैंने खिलाफ मसरत जानी और मैंने उसे सिर्फ इतना कहा कि फरार होने की कोशिश तो कर रही हूँ, अगर सजा मिली तो तुझे नहीं मुझे मिलेगी। फिर तू क्यों डर रहा है? वैसे ये तो बता कि तुझे किस कैद में कैद किया गया है। मैं उसे किसी न किसी तरह राह पर लाना चाहती थी, इसलिए बातों में लगाए हुए थी। तू क्या करेगी ये जानकर? तू भी तो आखिर एक औरत ही है और औरत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसकी आवाज से दुख का आधार हो रहा था और मैंने अंदाजा लगाया कि वो किसी औरत के हाथों चोट खाया हुआ है, इसीलिए बोली, देख सारी औरतें एक जैसी नहीं होती, ना होती होंगी। अब ज्यादा मेरा मगज ना चाट और मुझे सोने ने। उसके लहजे से बेजारी होने लगी। क्या तू वाकई कैद से रिहाई नहीं चाहता? और मैंने फिर उसे उकसाया। मैं भला इतनी आसानी से उसकी बात कैसे मान लेती, जबकि मुझे मालूम हो चुका था कि उसकी चीखों पुकार से मुहाफिज उस कैद खाने में आ सकते हैं। मुझे उसे राह रास्त पर लाने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ी, मगर आखिरकार मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई। वो बुरी तरह चीख चिल्ला रहा था और मेरी कोठरी भी उसकी चीखों से गूंज रही थी और मैं दरवाजे से लगी मुहाफिजों के आने की मुंतज़िर थी। और काफी देर के बाद मैंने वो आवाज सुनी जिसका इतनी देर से इंतजार था, और वो ऐसी ही आवाज थी जिसे मैं पहले भी सुन चुकी थी, दीवार खिसकने की आवाज। वो आ रहे हैं, अब तू चीखना बंद कर दे, मैंने चीख कर कैदी से कहा, मगर शायद अब चीखो पुकार में उसने मेरी आवाज नहीं सुनी और मेरे साथ जो औरत कैद थी वो जुबान कट जाने के बावजूद चीख सकती थी और मैं उससे पहले ही चीख चुकी थी कि जब इशारा करूं वो चीखने चिल्लाने लगे। उधर मैंने कदमों की चाप सुनी, उधर औरत को इशारा कर दिया और वह गला फाड़ फाड़ कर चीखने लगी। कैदी मर्द अब तक चीखे जा रहा था। आज शायद उसकी जुबान कटी की खाल भी खुजा रही है। मैंने बाहर से एक मर्दाना आवाज सुनी, तू इस हरामजादे को देख और मैं इस जुबान कटी की खबर लेता हूँ। कम वक्त गला फाड़ फाड़ कर चीखे जा रहे हैं और दो मुहाफिज मालूम होते थे। ये अच्छा ही हुआ था कि मर्द कैदी आखिर वक्त तक चीखता रहा और इसी तरह एक मुहाफिज उधर चला गया। कोठरी का दरवाजा अंदर की तरफ खुलता था और मैं दरवाजे की एक जन्म खड़ी हुई ताकि दरवाजे पर क्वाड़ की आड़ में हो जाऊं, और औरत अब तक चीख ही रही थी। जब मैंने कुंडी खोले जाने की आवाज सुनी तो उसे चुप हो जाने का इशारा कर दिया। गठे हुए जिस्म और गठे हुए सर वाला दरवाजा खोलकर कैदी औरत की तरफ झपटा और उसके वार खाली थे। उसकी पुश्त मेरी तरफ थी और फिर जैसे ही वो कैदी औरत के करीब पहुंचकर झुका, मैं दरवाजे की आड़ से निकलकर मैंने उस पर छलांग लगा दी। उसकी गर्दन मेरी कलाई में डालकर शाने में दांत गाड़ दिए और वह तड़प कर पलटा और मुझे अपनी पुश्त से उठाकर एक तरफ फेंक दिया और मैं जान चुकी थी कि मेरा जहर दांतों के जरिए उसके खून में शामिल हो चुका और अब वो सिर्फ चंद लम्हों का मेहमान है। और फिर भी उसमें बड़ी जान थी। वो गुर्राता हुआ दोनों हाथ फैलाकर मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन मुझ तक पहुंचते पहुंचते लहरा कर जमीन पर गिर पड़ा। बराबर वाली कोठरी से चीखों पुकार की आवाजें आ रही थी और दूसरा मुहाफिज यकीनन मर्द कैदी को मारने पीटने में मसरूफ था। उसे खबर ही नहीं हो सकी कि उसके साथ मुहाफिज पर क्या गुजर चुकी। अब चीखेगा, बोल हरामजादे। बराबर वाली कोठरी से दूसरे मुहाफिज की आवाज आई और मैं कैदी औरत का हाथ थामे तेजी के साथ बाहर निकल आई। उसी वक्त मेरी निगाह जलते हुए मशल पर पड़ी जो अभी तक कोठरी के दरवाजे के ऊपर सलाखों में फंसी हुई थी, और चीखों पुकार के सब मुहाफिजों ने शायद उस पर तवज्जो नहीं दी थी। तू यही खड़ी रह, मैं दूसरे मुहाफिज के जुल्म से उस कैदी को बचाती हूँ। और मैंने कैदी औरत से कहा। कैदी औरत को कोठरी के बाहर छोड़कर जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो दूसरी कोठरी के दरवाजे से दूसरे मुहाफिज को बाहर निकलते देखा और मुझे देखते ही उसने अपना लंबा सा खंजर कमर से खींच लिया और वैश्याना अंदाज में चीखता हुआ मेरी तरफ लपका। और मेरे लिए सब कुछ खिलाफी तवक्का था। मैंने सोचा था कि मर्द कैदी को जर्द कूब कर रहा होगा और मैं तो पीछे जाकर पहले मुहाफिज की तरह उसे भी शिकार कर लूंगी। और फिर जैसे ही मेरे करीब आया मैं तेजी से एक तरफ हट गई और उसकी टांग में अपनी एक टांग फंसा दी और वो अपने ही जोर में मुंह के बल गिरा। कैदी औरत की यह बदकिस्मती ही थी कि वो मुहाफिज की झपट में आ गई और गिरते गिरते मुहाफिज ने उसकी टांग पकड़कर घसीट ली थी। फिर इससे पहले कि मैं कैदी औरत को बचा सकती, मुहाफिज ने कोहनियों के बल उठकर कैदी औरत के सीने में खंजर उतार दिया और उसी वक्त मैंने कचकचाकर मुहाफिज के एक बाजू में अपने दांत गाड़ दिए। उसने कैदी औरत के सीने से खंजर निकालकर मुझ पर हमला करना चाहा, मगर उस वक्त तक मैं उछलकर खड़ी हो चुकी थी और फिर उस मुहाफिज को उठना नसीब ना हुआ। मेरे जहन ने उस पर भी
काम तमाम कर दिया। मर्द कैदी अपनी कोठरी के दरवाजे में खड़ा हुआ हैरत से ये मंजर देख रहा था और मैंने देखा और मुझे देखकर ये हैरत हुई कि वो कैदी मरने वाले दूसरे मुहाफिज से किसी तरह कम तर ताकतवर मालूम नहीं होता था। उसी लम्हे मुझे कैदी औरत का ख्याल आया जो अपने सीने से उबलते हुए खून को दोनों हाथों से रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैं उसकी तरफ लपकी और मैंने उसे वादा किया था कि उसे कैद से रिहाई दिलाऊंगी। कैद से तो मैंने उसे रिहाई दिला दी, मगर उसी के साथ वो जिंदगी की कैद से भी आजाद हो गई थी। उसने एक बार फिर मेरी तरफ बड़ी हसरत से आह कहा और फिर मैं उसका सर एक तरफ को ढल गया। मरने से पहले वो मुझसे ना जाने क्या कहना चाहती थी। उसकी मौत का मुझे बहुत दुख हुआ। कुछ सोचकर मैंने मरने वाले मुहाफिज के हाथ से खून आलूद खंजर खींच लिया और फिर चमड़े का वो खोल भी उसके कमरे से खींच कर निकाल लिया जिसमें खंजर रखा जाता था। लंबे खंजर पर लगे हुए खून में मैंने मुहाफिज के कपड़ों से साफ किया और फिर इसे खून में रख कर आगे की जानब अपने कमरे में उठ लिया। इस काम से मैं फारग होकर सीधी खड़ी हुई तो देखा मर्द कैदी की नजरें मेरे जिस्म के बलाई हिस्से की तरफ उठी हुई थी और मेरे जिस्म के बलाई हिस्से पर सिर्फ चमड़े की चोली बंधी हुई थी। मुझ पर इस हालत में कभी किसी मर्द की नजर नहीं पड़ी थी और वो पहला मर्द था जिसने मुझे यूं नीम अरियां देखा और ये सोचकर लम्हे भर को मुझे शर्मिंदगी से महसूस हुई। मर्द कैदी शायद मेरे हुस्न के शहर में इस बुरी तरह गिरफ्तार हुआ था कि यह भी भूल बैठा कि वहीं उसके सामने 2 लाशें पड़ी हैं। तो ये मुझे इस तरह क्यों देखे जा रहा है? मैंने उसे मुखातब किया। वो एक तरह से चौंक उठा जैसे कोई हसीन ख्वाब देखते देखते एकदम उसकी आंख खुल गई हो। तू वही है जो मुझसे बातें कर रही थी और जिसने मुझसे चीखने चिल्लाने को कहा था? वो ख्वाब कैसे आलम में बोल उठा। हाँ, मैं वही हूँ। क्या तूने मुझे मेरी आवाज से नहीं पहचाना? मगर तेरी कोठरी का दरवाजा किसने खोला? अगर तू उसे देखना चाहता है तो उसे कोठरी जाकर उसी की लाश देख ले। मैंने दाएं जन्म कोठरी की तरफ इशारा किया जहां मैं मकतूल कैदी औरत के साथ बंद थी और फिर मैंने उसे बताया, तूने उसे भी मार डाला? उसकी आवाज में बला की हैरत थी। हाँ, मैंने तुझसे कहा था ना कि तुझे कैद से रिहाई दिलाऊंगी। अब तू आजाद है, मगर अब तक उस बूढ़े शैतान को शैतानी कुव्वतों के जरिए सब कुछ पता चल गया होगा और उसके गुलाम अब उसे कुछ पता नहीं चल सकता। ये कहते हुए मुझे ख्याल आया कि इस कैदी को एतमाद में मेरे लिए लेना सूदमंद साबित होगा। वो हसीब ही का कोई खिदमतगार मालूम होता था और मुझे उसकी जगह तक ले जा सकता था जहां मैं अहरस, नसार और महापुजारी को छोड़कर आई थी। यही सोचकर मैंने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और ये मैं अंदाजा तो पहले ही लगा चुकी थी कि वो मेरे हुस्न से मबहूत हो गया है। उस मौका पर मुझे सामर याद आया और वही सामर, वही हसीब के खिदमतगार जिसने मोहब्बत का फरेब दिया था। आखिरकार वो अपनी इबरतनाक मौत से 2-4 हुआ और मेरी ही मदद करने के जुर्म में आज ही रात हफीज ने अपनी कनीजों से उसे मेरी आंखों के सामने कत्ल करा दिया था। सुन, मैं तुझे एक ऐसी खबर देने वाली हूँ जो कबील के किसी शख्स को अब तक नहीं मालूम। मेरी आवाज धीमी हो गई। बूढ़ा शैतान मर चुका है। नहीं, वो इस तरह उछल पड़ा जैसे मैंने कोई नाकाबिल यकीन बात कह दी हो। वो नहीं मर सकता, वो तो सदियों से जिंदा है और सदियों जिंदा रहेगा। तुझे शायद किसी ने बहका दिया। ये गलत है कि वो सदियों से जिंदा था। हाँ, वो सदियों जिंदा रहने की आरज़ू जरूर रखता था और उसी आरज़ू ने उसे मौत के घाट उतार दिया। सुन, मुझे किसी ने नहीं बहकाया, बल्कि मैंने खुद उसे अपनी आंखों से मरते देखा है। मैंने उसे यकीन दिलाया। कब, कहां, कैसे? अब भी उसके लहजे में बेयकीनी थी। आज ही रात और कुछ ही देर पहले लावा उगलने वाले पहाड़ के अंदर वो खून उगल कर मर गया और मैंने उसके 3 सवालों का जवाब एक साथ दे दिया। मगर तू कौन है? मुझे कबीत की तो नहीं लगी। है, मैं कबीत की नहीं, मेरा नाम आतून है। और फिर मैंने मुख्तसरन उसे अपनी कबीत आने की वजह बता दी। इसी दौरान में उसका नाम भी मैंने पूछ लिया। तो ए बरीसा, मैंने तुझे अपनी दास्तान सुना दी। अब तू क्या मुझे उस जगह तक ले जा सकता है जहां मेरे 3 साथी सतूनों से बंदे खड़े हुए हैं? मेरी यकीन दहानी के बाद वो कुछ बदरा सा नजर आने लगा। उसने कहा, अगर ऐसा है तो फिर बरीसा हर कीमत पर तुझे सतूनों वाले दालान तक ले जाएगा, चाहे उसकी जिंदगी ही खतरे में क्यों ना पड़ जाए। उसकी आवाज पुरजोश होती गई और फिर नीम तारीख से जीने में बरीसा मेरा हाथ थामे उतरता चला गया और जीने से उतरते ही वो दाएं जन्म नजर आने वाली नीम तारीख सुरंग में दाखिल हो गया। वो सुरंग ज्यादा बड़ी नहीं थी और सामने रोशनी नजर आ रही थी। सुरंग के बाहर कदम रखने से पहले बरीसा ने मुझे हाथ के इशारे से रोक दिया। तू यहीं रोक, उसने सरगोशी की। यहाँ कोई ना कोई गुलाम जरूर पहरे पर मौजूद होगा, मैं देखता हूँ। जब तक मुझे अपनी कमर में अड़ते हुए खंजर का ख्याल आया, बरीसा सुरंग से बाहर कदम रख चुका था और मुझे ख्याल आया कि वो नहता है। ऐसी सूरत में उसकी जिंदगी को खतरा भी पेश आ सकता है।
जैसे ही हम दोनों सुरंग से निकले, मसला गुलामों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। उनमें से किसी के हाथ में नेजा, किसी के पास तलवार और कोई खांडा संभाले हुए था। और ये मुहासरा कतई खिलाफी तवक्का था, मगर उसकी वजह फौरन ही समझ में आ गई। इसे तो सरदार के साथ वापस आना था। एक गुलाम ने मेरी तरफ उंगली उठाते हुए कहा। यकीनन वो मुझे पहचानता था और उसे अपने सरदार ही की आमद का इंतजार था। फिर ये शाम के फन वाली तेरे साथ क्यों है? वो गुलाम बरीसा ही से मुखातब था। इस दौरान में बरीसा ने मुझे खुद से करीब कर लिया और मेरा बाएं हाथ के चौड़े चकले सीने पर था और मैं बरीसा से लगी हुई सामने से नेज़े हाथों में लिए कुछ और गुलामों को आते देख रही थी। और बरीसा की नजरें सामने ही कुछ फासले पर खांडा उठाए हुए उस खादम के चेहरे पर जमी हुई थी जो उससे मुखातब था। दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ से गुलाम किसी भी समय हम पर टूट पड़ने के मुंतज़िर थे। मैंने जब से इस बस्ती की हदूद में कदम रखा था और खजीरा रुखसत हुई थी, उस वक्त से अब तक मेरी कोई पुरइसरार कुव्वत बेदार नहीं हुई थी। और हर तरफ से खतरे में घिर जाने के बाद पहली बार मुझे उन पुरइसरार कुव्वतों का ख्याल आया जिनके बारे में अभी खुद मैं भी पूरी तरह आगाह नहीं थी। और दूसरे लम्हे मुझे अपने सारे जिस्म में तेज किस्म की सनसनी सी दौड़ती महसूस हुई, जिनका मरकज मेरी दोनों आंखें थीं और मेरी दोनों आंखों में बिजली सी कूद गई। और फिर दो बातें बीक वक्त हुई। पहली ये कि बरीसा के जिस्म को झटका सा लगा और वह उछल कर पीछे हट गया। दूसरा ये कि मैंने अपनी दोनों आंखों से तेज रोशनी से निकलते देखी जो सामने खड़े हुए गुलामों के जिस्मों में मरकूज हो गई। और दूसरे ही लम्हे उनके गुलामों के जिस्म शोला देती हुई आग की तरह भड़क उठे और मेरी आंखों से तेज रोशनी निकलते और सामने मौजूद गुलामों के जिस्मों को जलते यकीनन सभी गुलामों ने देखा होगा। खिलाफ तवक्का अचानक तमाम ही गुलाम अपने हाथों से हथियार फेंक कर सजदा रेज हो गए। ऐ आग की देवी, ऐ जिंदा जला देने वाली, अपने गुलामों को माफ कर दे, सजदे में गिरे हुए किसी गुलाम ने बा आवाज बुलंद में कहा। और फिर वह सभी ये अल्फाज बार बार दोहराने लगे। अब वहां अपने पैरों पर खड़ा रहने वाली सिर्फ मैं ही थी और मुझे हैरत इस बात पर थी कि बरीसा भी मेरे सामने सजदा गुजारों में शामिल था और वह मुझे आग की देवी समझकर मेरे सामने सजदा रेज थे। और मेरे लिए देवी बन के जाना कोई नया तजर्बा नहीं था। मुझे इल्म था कि अब वो सब के सब मेरे दामे गुलामत बन चुके हैं और अब मैं उनसे जो कुछ कहूंगी उसे वो देवताओं का फरमान ही समझेंगे। और मेरी एक ही पुरइसरार कुव्वत के ज़हूर ने सारी सूरत हाल को कतई बदल दिया और मैंने उन्हें मुखातब किया, उठो कि तुम्हारी देवी तुम्हें हसीफ की गुलामी से आज़ाद हो जाने की खुशखबरी सुनाती है। वो सब मेरा हुक्म सुनते ही एकदम उठ खड़े हुए और मेरे इतराफ हल्का सा बनाकर खड़े हो गए। इस दौरान उन गुलामों के ढांचे भी जलकर राख बन चुके थे जो मेरी आंखों से निकलने वाली तेज रोशनी की जिद में आ गए थे। सुनो कि देवताओं को खबर हो गई थी कि तुम अपने सरदार हसीफ से खुश नहीं हो, तुम उससे नफरत करते हो और फिर गुलामों से मुखातब हो गई। सो देवताओं ने तुम्हारे दिलों की पुकार सुन ली और हसीफ को एक इबरतनाक मौत मार डाला। वो अपने मुंह से और सारे जिस्म में खून उगल उगल कर मर गया। उसकी लाश आग उगलने वाले पहाड़ के पेट में पड़ी है। जाओ और पहाड़ों के पेट में आबाद सारे कबीत वालों को खबर कर दो कि आज से उन्हें हसीफ की गुलामी से आज़ाद कर दिया गया और वो जो पहाड़ों के अंदर उन्हें भी जाकर ये खुशखबरी दे दो। और मेरा हुक्म सुनते ही गुलामों ने पुरजोश नारे लगाए और मुख्तलिफ समतों में दौड़ पड़े। शायद इस हिस्से को मरकजी हैसियत हासिल थी जहां से वह पहाड़ों के अंदर हर तरफ जा सकते थे। और फिर मेरे और बरीसा के सिवा वहां कोई नहीं रहा और वह मुझसे कुछ फासले पर खड़ा हुआ मेरी तरफ खौफजदा सी नजरों से देख रहा था। ऐ बरीसा, अब सतूने वाले दालान की तरफ चल। और मैंने उसे मुस्कुराकर मुखातब किया ताकि उसका खौफ कुछ कम हो जाए। ऐ आतुन, मुझे खबर नहीं थी कि तू देवी है और देवताओं की चहेती है। मेरी गुस्ताखी और जुर्रात पर मुझे माफ कर दे। वो गड़गड़ाया। मुझे मालूम है कि देवियां खुद को जाहिर नहीं करती और ऐसा कभी कभार ही होता है। सो मैं खुश नसीब हूँ कि मेरी नजरें तुझ पर पड़ी और मैं तेरे कदम से कदम मिलाकर चला और तुझसे ये बातें की और तुझे छू कर देखा। ये कहते हुए झिझकता हुआ सा मेरे करीब आया और फिर अब भी छू कर देख सकता है। ये कहते हुए मैंने उसका हाथ थाम लिया और मैंने उसके हाथ में राशा सा महसूस किया। शायद मेरे लमस का असर था कि वो गालबन इस यकीन और एहसास का सबब एक देवी ने उसका हाथ थाम रखा है। एहसास और यकीन तो सब कुछ है और यकीन से बड़ी शायद कोई और कुव्वत नहीं जो आदमी को पस्तियों में भी धकेल सकती है और बुलंदियों की तरफ भी। तो मैंने यकीन किया कि मेरे अंदर गैर मामूली पुरइसरार कुव्वतें मौजूद हैं और फिर वह कुव्वतें ज़ाहिर हो गईं। उसके बाद सतूनों वाले दलान तक पहुंचने में मुझे और बरीसा को ज्यादा देर नहीं लगी। वहां की फिजा अब तक उसी तरह थी
अलाव पहले की मदद अब तक भड़क रहा था और मेरे तीनों साथी भी सतूनों से उसी तरह बंधे हुए थे। हाँ, इस मर्तबा एक तब्दीली जरूर हुई। मैंने जैसे ही उस हिस्से में कदम रखा, वहां मौजूद कनीजे और गुलामे सजदे में गिर गए। खुश आमदीद ए आतून देवी, तेरी कदमों की बरकतों से हमेशा ये पहाड़ आबाद रहें, वो सब बुलंद आवाज में कह रहे थे। और मुझे ये समझने में देर न लगी कि मेरी वहां आमद से कबल मेरी देवी होने की खबर वहां पहुंच चुकी है।